اور نظمیں بھی کہتی ہیں، لیکن ان کی نظموں میں ان کی ایک سائنسی فکر زیادہ اجاگر ہوتی ہے۔ سماعت کیجیے گا، بھرپور داد دیجیے گا شاعرات کو، کیونکہ ان کا کلام یقیناً قابل داد ہے۔ سماعت کیجیے محترمہ شائستہ مفتی۔ یہ خواتین کا ایک کانفرنس ہے، تو خواتین کے حوالے سے ایک میں نے نظم لکھی تھی۔ جیسے امین نے کہا مجھے نظم زیادہ پسند ہے کہنا، غزلیں میں کہتی ہوں لیکن نظمیں مجھے زیادہ پسند ہے۔ اس کا عنوان ہے باغ میں کھل رہی ہے ایک کومل۔ باغ میں کھل رہی ہے ایک کومل، کہہ مالی سے دیکھ بھال کرے، سرخ سا آسمان لگتا ہے، آندھیوں کا ذرا خیال کرے، زندگی ٹوٹ پھوٹ جائے گی، بے ارادہ نہ کچھ کمال کرے، باغ میں کھل رہی ہے ایک کومل۔ باغ میں کھل رہی ہے ایک کومل، روشنی سے کہو کہ پاس رہے، سانس کی ڈور ہے بہت نازک، اے صبا تھم کے دم شناس رہے، موج ہستی سے مانگ کر دو پل، زندگی بھر نہیں اداس رہے، باغ میں کھل رہی ہے ایک کومل، اس کو حق ہے کہ وہ پھلے پھولے، باغ میں کھل رہی ہے ایک کومل، اس کو حق ہے کہ وہ پھلے پھولے، کاروبار حیات سے کہہ دو اپنے خالق کا حکم مت بھولے، ہر کلی جو نمود پاتی ہے پھول بن جائے اور ہوا چھولے۔ ایک نظم اور سناؤں گی، اس کے بعد پھر دو شعر اور پھر میں آپ سے زیادہ چاہوں گی کہ آج لگتا ہے سمندر میں ہے طغیانی سی، آج لگتا ہے سمندر میں ہے طغیانی سی، جانے کس دہر سے آیا ہے یہ طوفان بلا، یہ جو طوفان کے اس میں ہے کھنڈر خوابوں کے، ٹوٹتے خواب ہیں دھندلی سی گزرگاہوں کے، انکہی کوئی کہانی کوئی جلتا آنسو، انکہی کوئی کہانی کوئی جلتا آنسو، آ کے دامن میں ٹہلتا ہوا بے کل شکوہ، چپ سی سادی ہے میرے بت میں مگر آنکھوں میں، میرے ہر تاج محل کی ہے حقیقت واضح، جس میں رہتی ہے وہ شہزادی جسے قدرت نے، جس میں رہتی ہے وہ شہزادی جسے قدرت نے، دل دھڑکتا ہوا بخشا ہے بدن پتھر کا، جس میں رہتی ہے وہ شہزادی جسے قدرت نے، دل دھڑکتا ہوا بخشا ہے بدن پتھر کا، میں نے دیکھا ہے کہ وہ رات کے اندھیاروں میں اپنے خوابوں کے محل خود ہی جلا دیتی ہے، اپنے خوابوں کے محل خود ہی جلا دیتی ہے، اپنے ٹوٹے ہوئے پر خود ہی چھپا دیتی ہے، اپنے اشکوں کے دیے خود ہی بجھا دیتی ہے، خود ہی اپنے لیے لکھتی ہے سزاؤں کی کتاب، اپنے ہاتھوں سے چھپا دیتی ہے زخموں کے گلاب، آج لگتا ہے سمندر میں ہے طغیانی سی، آج لرزش سی ہے پیروں میں تھکن سانسوں میں، آج لرزش سی ہے پیروں میں تھکن سانسوں میں، کرچیاں چبھنے لگی ہیں جو میری آنکھوں میں، آج لازم ہے کہ چپ چاپ گزر جائے شام، کوئی آہٹ ہو نہ دستک نہ ہی چھلکے کوئی جان، آج آئینے سے کترا کے گزر جانا ہے، آج شب گھور اندھیرے میں اتر جانا ہے، پھر نیا دن نئی مسکان جگہ لائے گا، شب کا طوفان کناروں سے اتر جائے گا، آج لگتا ہے سمندر میں ہے طغیانی۔ یہ دو شعر میں سناؤں گی آپ کو، بس یہ ان تمام ہوم میکرز کے لیے جو کہ گھر بناتی ہیں اور مطلب گھر کو اپنے ہاؤس کو ہوم بناتی ہیں، کہ پانی پہ سفر کرنا مشکل تو لگا ہم کو، پانی پہ سفر کرنا مشکل تو لگا ہم کو، تنہائی کو گھر کرنا مشکل تو لگا ہم کو، ایک خواب کا قیدی ہے وہ سیپ کا گھر جیسے، ایک خواب کا قیدی ہے وہ سیپ کا گھر جیسے، قطرے کو گوہر کرنا مشکل تو لگا ہم کو، ہیرے کا جگر اس کا تھا پھول سا دل اپنا، ہیرے کا جگر اس کا تھا پھول سا دل اپنا، اس دل پہ اثر کرنا
मुश्किल तो लगा मुझे, पानी पे सफ़र करना मुश्किल तो लगा आपने समाज किया शाइस्ता मुफ्ती को, और अब हम जिस शायरा को दावत कलाम दे रहे हैं वो अफसाना निगार भी हैं, अफसाने लिखती रहीं और शायरी भी बहुत उम्दा करती हैं, गज़लें नज़में दोनों कहती हैं। कई शेरी मजमूए आ चुके हैं जिसमें एक नात का मजमूआ भी शामिल है। आपके यहाँ मशरक़ी औरत अपने पूरे वक़ार के साथ मौजूद है, आपके यहाँ तंज़ भी मिलता है और आपने हमारे चुपते हुए माशरती मसाइल पर भी लिखा है। तशरीफ़ ला रही हैं मोहतरमा हुमैरा राग। रिहाना रूबी साहिबा ले आई हैं, हम उनको भी मदद हमारे शायरात के साथ तशरीफ़ फरमा हो। समाअत कीजिए हुमैरा राग। बहुत शुक्रिया आपने। एक मुख्तसर सी नज़्म, इसका उन्वान है इनकार। महज इस बात पर वो मुश्तइल है कि मैं खुद अपनी ही आँखों से ये दुनिया देखती हूँ। महज इस बात पर वो मुश्तइल है कि मैं खुद अपनी ही आँखों से ये दुनिया देखती हूँ, और वो जब भी चाहता है अपनी बीनाई मेरी आँखों में रख दे तो ज़बान इनकार कर देती है, और इनकार मेरा काबिले ताज़ीर ठहरा है। और वो जब भी चाहता है अपनी बीनाई मेरी आँखों में रख दे तो ज़बान इनकार कर देती है, और इनकार मेरा काबिले ताज़ीर ठहरा है। सुना ये है सज़ा मेरा मुक़द्दर बन चुकी है। सुना ये है सज़ा मेरा मुक़द्दर बन चुकी है। सो अब मैं मुंतज़िर हूँ एक तश्त और एक खंजर की। अब मैं मुंतज़िर हूँ एक तश्त और एक खंजर की। और गज़ल के कुछ शेर। हिसारे ज़ात से बाहर निकलना चाहती हूँ। हिसारे ज़ात से बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं अब हर हुक्म से इनकार करना चाहती हूँ। हिसारे ज़ात से बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं अब हर हुक्म से इनकार करना चाहती हूँ। ज़मीन पर घर की बुनियादें बहुत कमज़ोर ठहरी। ज़मीन पर घर की बुनियादें बहुत कमज़ोर ठहरी। सो अब पानी पे घर तामीर करना चाहती हूँ। ज़मीन पर घर की बुनियादें बहुत कमज़ोर ठहरी। सो अब पानी पे घर तामीर करना चाहती हूँ। गुजारी है जो मैंने ज़िंदगी मेरी नहीं थी। गुजारी है जो मैंने ज़िंदगी मेरी नहीं थी। कम से कम मौत तो अपनी ही मरना चाहती हूँ। गुजारी है जो मैंने ज़िंदगी मेरी नहीं थी। गुजारी है जो मैंने ज़िंदगी मेरी नहीं थी। कम से कम मौत तो अपनी ही मरना चाहती हूँ। और शेर देखिए कि बहुत तशबीह दी है शायरों ने मुझको जिससे। बहुत तशबीह दी है शायरों ने मुझको जिससे। कदम उस चांद की मिट्टी पे धरना चाहती हूँ। बहुत तशबीह दी है शायरों ने मुझको जिससे। कदम उस चांद की मिट्टी पे धरना चाहती हूँ। ये ख्वाहिश है मुकाबिल अब न कोई आईना हो। ये ख्वाहिश है मुकाबिल अब न कोई आईना हो। तुम्हारी आँख को आईना करना चाहती हूँ। ये ख्वाहिश है मुकाबिल अब न कोई आईना हो। तुम्हारी आँख को आईना करना चाहती हूँ। किसी हरफे सताइश की तलब दिल में नहीं है। किसी हरफे सताइश की तलब दिल में नहीं है। मैं खुद अपने लिए सजना संवरना चाहती हूँ। किसी हरफे सताइश की तलब दिल में नहीं है। मैं खुद अपने लिए सजना संवरना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया।
किश्वर नाहिद तशरीफ ले आई हैं। किश्वर आपा को मोहतरमा कहते हुए इतना अजनबी सा नाम महसूस होता है। किश्वर आपा आपसे दरख्वास्त है कि तशरीफ लाइए। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं आ चुकी हूँ। किश्वर नाहिद साहिबा का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। किश्वर नाहिद साहिबा का नाम, उनका काम यकीनन उर्दू अदब में एक अहम मकाम रखता है। आपने समाअत किया हुमैरा राहत को, जो कह रही थी कि कम अज़ कम मौत तो अपनी ही मरना चाहती हूँ। और अब हम इस मुशायरे में मदऊ कर रहे हैं जिस शायरा को वो बरतानिया से तशरीफ़ लाई हैं। ये एक आलमी मुशायरा है ख़वातीन का, और उनके 3 शेरी मजमूए मंज़र आम पर आ चुके हैं। उनकी शायरी में एक मशरक़ी औरत है जो मशरक़ी रिवायात की पासदार है, गज़लें भी कहती हैं, नज़में भी कहती हैं। यॉर्क अदबी शायर फोरम के यॉर्क शायर अदबी फोरम के नाम से एक तंजीम चलाती हैं, बहुत फ़ाल खातून हैं। पाकिस्तान से बाहर जो नई बस्तियाँ हैं यानी बरतानिया में, उसमें उर्दू ज़बान और अदब की तरक्की और तरोीज में बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। तशरीफ़ लाती हैं मोहतरमा गज़ल अंसारी। आप तरन्नुम से भी पढ़ती हैं और गज़ल से भी, और दोनों तरह लोग आपको पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया अमीन आपका, और सबसे पहले आपको मुबारक हो जितने यहाँ पर मुंतज़मीन बैठे हैं या आर्ट्स काउंसिल के, कि आपने इस खूबसूरत दिन का जो बल्कि कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अल्लाह करे कि ये हर साल इसी तरह से चलता रहे हम सब आपके साथ। एक छोटी सी नज़म साहिब सदर, आपकी इजाज़त से। मैं कोई खिलौना हूँ, मैं कोई खिलौना हूँ, खुद सरी की परवरदार एक ज़िद्दी बच्चे। मैं कोई खिलौना हूँ, खुद सरी की परवरदार एक ज़िद्दी बच्चे का, जिसको मेरी कीमत का कुछ नहीं है अंदाज़ा, जिसको मेरी कीमत का कुछ नहीं है अंदाज़ा। खेल कर वो कुछ लम्हे मुझको तोड़ देता है, खेल कर वो कुछ लम्हे मुझको तोड़ देता है, और एक कोने में रख के छोड़ देता है। एक और छोटी सी नज़म। ज़रूरतों के इवज़ किया था रहम खुदी, ज़रूरतों के इवज़ किया था रहम खुदी को, मिले थे जब तुम ज़माने में। ज़रूरतें ख़त्म हो चुकी, तमाम कर्जा चुका दिया। ज़रूरतें ख़त्म हो चुकी हैं, तमाम कर्जा चुका दिया। चलो मुझे अब रिहाई दे, मैं सूद में ख़त्म हो गई। बहुत शुक्रिया। बातचीत अगर थोड़ी सी कम हो जाए तो अच्छा लगेगा सुनाना। भाई आज तो ख़वातीन का दिन है, आज तो ख़वातीन को सुन लीजिए। रिक्वेस्ट की गई है। बहुत शुक्रिया। एहसास निदामत, इकबाल भाई 2 शेर। एहसास निदामत मुझे रुसवाई का डर है, एहसास निदामत मुझे रुसवाई का डर है, मुझको तेरी देरी न शनासाई का डर है। एहसास निदामत मुझे रुसवाई का डर है, मुझको तेरी देरी न शनासाई का डर है। मैदान अमल में हूँ मैं अब उनके मुकाबले, मैदान अमल में हूँ मैं अब उनके मुकाबले, जिनको मेरी दानिश मेरी दानाई का डर है। मैदान अमल में हूँ मैं अब उनके मुकाबले, जिनको मेरी दानिश मेरी दानाई का डर है। और 2 शेर और। मेरी हुर्मत पे मुझको नाज है ये मेरी मर्जी, मेरी हुर्मत पे मुझको नाज है ये मेरी मर्जी, मेरा आंचल मेरी परवाज है ये मेरी मेरी हुर्मत पे मुझको नाज है ये मेरी मर्जी, मेरा आंचल मेरी परवाज है ये मेरी मर्जी। हया है मेरा जेवर कीमती मेरा असासा, हया है मेरा जेवर कीमती मेरा असासा, मेरे मजहब का ये एजाज है ये मेरी मजहब। आजकल सबकी मर्जी चल रही है। अतर शाह खान जेदी साहब की एक वीडियो क्लिप चल रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि खड़े
मैं मुस्कुरा रहा हूँ तो मेरी मर्जी। तो बात यह है कि आमतौर पर रिवायत ये है कि मुशायरे के आगाज़ में नाज़िम मुशायरा अपना कलाम सबसे पहले पेश करता है, लेकिन नाज़िम मुशायरा हमें हमारी मर्जी। वाह 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 मिश्रा हो गए। वाह 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 चंद अशार, जैसा कि आज का दिन है कि मैं सरफराज हूँ तारीख के किरदारों में, मैं सरफराज हूँ तारीख के किरदारों में, मैं रही शोला नवा शाम के दरबार में। मैं सरफराज हूँ तारीख के किरदारों में, मैं रही शोला नवा शाम के दरबारों में, मैं मोहब्बत की अलामत, मैं वफा की तस्वीर, मैं मोहब्बत की अलामत, मैं वफा की तस्वीर, मैं ही चुनवाई गई कसर की दीवारों में। मैं मोहब्बत की अलामत, मैं वफा की तस्वीर, मैं ही चुनवाई गई कसर की दीवारों में। सिन्फ़े नाजुक हूँ मगर गर्दिशे दौरां है गवाह, सिन्फ़े नाजुक हूँ मगर गर्दिशे दौरां है गवाह, काट मुझसे नहीं मिलती कहीं तलवारों में। सिन्फ़े नाजुक हूँ मगर गर्दिशे दौरां है गवाह, काट मुझसे नहीं मिलती कहीं तलवारों में। और ये शेर समाअत कीजिएगा कि कद्र यूसुफ की ज़माने को बताई मैंने, कद्र यूसुफ की ज़माने को बताई मैंने, तुम तो बेचाए उसे मिस्र के बाजारों में। कद्र यूसुफ की ज़माने को बताई मैंने, तुम तो बेचाए उसे मिस्र के बाजारों में। एक नज़्म पेश करने की साथ कर रहे हैं। नज़्म का उन्वान है नया दौर। मुझे मेरी माँ ने बताया था बचपन में एक दिन, सुहागन वही है पिया मन जो खाए। मुझे मेरी माँ ने बताया था बचपन में एक दिन, सुहागन वही है पिया मन जो भाए। सो मैं सर झुकाए उम्र भर एक सुहागन के पैकर में ढलने की कोशिश में हल्कान होती रही। सो मैं सर झुकाए उम्र भर एक सुहागन के पैकर में ढलने की कोशिश में हल्कान होती रही हूँ। ये सांचा कुछ ऐसा था मैं जिसमें पूरी समाती नहीं थी, ये सांचा कुछ ऐसा था मैं जिसमें पूरी समाती नहीं थी। बहुत मैंने चाहा कि मैं अपनी हस्ती को मिसमार करके सुहागन के पैकर में ढल जाऊं, लेकिन ये मुमकिन कहाँ था। बहुत मैंने चाहा कि मैं अपनी हस्ती को मिसमार करके सुहागन के पैकर में ढल जाऊं, लेकिन ये मुमकिन कहाँ था कि रोज इसका सांचा नया रूप धारे मुझे आजमाता, मेरी हार पर मेरा खाका उड़ाता। कि रोज इसका सांचा नया रूप धारे मुझे आजमाता, मेरी हार पर मेरा खाका उड़ाता। बहुत साल गुजरे, मैं आज अपनी बेटी को समझा रही थी, सुहागन वही है पिया। मैं आज अपनी बेटी को समझा रही थी, सुहागन वही है पिया मन जो भाए। मगर मेरी नन्ही सी बेटी ने सर को झुकाने से इनकार करते हुए मुझसे पूछा, मगर मेरी नन्ही सी बेटी ने सर को झुकाने से इनकार करते हुए मुझसे पूछा, मेरी माँ मुझे पहले तुम ये बताओ पिया कौन है, बस ब्याह कर जुलाए। तो मैं एक रुख देखती हूँ उसे और ये सोचती हूँ कि मैंने तो माँ से ये पूछा नहीं था, कभी इसकी बाबत भी सोचा नहीं था, सो मैं क्या बताऊं। मगर मेरी बेटी मुझे ये यकीन है कि तू अपनी बेटी से जो भी कहेगी नई बात होगी, नए दौर की यूं शुरुआत होगी।
بے بصیرت جو اڑا دے کسی کردار پہ خاک، بے بصیرت جو اڑا دے کسی کردار پہ خاک، ایسی تحریر پہ افسوس قلمکار پہ خاک، جو اڑا دے بے بصیرت جو اڑا دے کسی کردار پہ خاک، ایسی تحریر پہ افسوس قلمکار پہ خاک، مجھ کو کمزور سمجھنا ہی تو نادانی تھی، مجھ کو کمزور سمجھنا ہی تو نادانی تھی، ڈال دی میں نے تیری مسند و دستار پہ خاک، مجھ کو کمزور سمجھنا ہی تو نادانی تھی، ڈال دی میں نے تیری مسند و دستار پہ خاک، جو محبت کو سمجھتا ہو تہی عزت سے، جو محبت کو سمجھتا ہو تہی عزت سے، وہ کوئی بھی ہو مگر ایسے گرفتار پہ خاک، جو محبت کو سمجھتا ہو تہی عزت سے، وہ کوئی بھی ہو مگر ایسے گرفتار پہ خاک، در بدر آج ہوئے ہیں تو لہو روتے ہیں، در بدر آج ہوئے ہیں تو لہو روتے ہیں، کل جو کہتے تھے کہ گھر کے در و دیوار پہ خاک، در بدر آج ہوئے ہیں تو لہو روتے ہیں، کل جو کہتے تھے کہ گھر کے در و دیوار پہ خاک، ایسا فن جس میں کہ عورت ہو نمائش کے لیے، ایسا فن جس میں کہ عورت ہو نمائش کے لیے، آپ شہکار سمجھتے ہیں تو شہکار پہ خاک، ایسا فن جس میں کہ عورت ہو نمائش کے لیے، آپ شہکار سمجھتے ہیں تو شہکار پہ خاک، خوب تاریخ مورخ بھی رقم کرتے ہیں، خوب تاریخ مورخ بھی رقم کرتے ہیں، آپ کے ظلم وجہ اور میرے ایثار پہ خاک، خوب تاریخ مورخ بھی رقم کرتے ہیں، آپ کے ظلم وجہ اور میرے ایثار پہ خاک، اور آخری شعر ہے کہ جس میں عورت کا بناتی ہو تماشا عورت، جس میں عورت کا بناتی ہو تماشا عورت، ایسی تحریک پہ تف ایسے سب افکار پہ جس میں عورت کا بناتی ہو تماشا عورت، ایسی تحریک پہ تف ایسے سب افکار پہ خاک، بے بصیرت جو اڑا دے کسی کردار پہ خاک، ایسی تحریر پہ افسوس قلمکار پہ خاک۔ اور جی اب ہماری مرضی چلے گی اور ہم اگلی شاعرہ کو مدعو کریں گے، اور جس شاعرہ کو ہم مدعو کر رہے ہیں ان کے ہاں سماجی شعور کے ساتھ ساتھ سیاسی شعور بھی ملتا ہے، آپ غزلیں اور نظمیں دونوں کہتی ہیں، اور آپ کی نظموں اور خصوصاً غزلوں میں جو سیاسی شعور ملتا ہے وہ قابل داد ہے، آپ ورکنگ ویمن بھی ہیں، لہٰذا آپ کی شاعری میں مطالعے، مشاہدے اور تجربے کے ایسے رنگ ملتے ہیں، اور وہ رنگ مل کر ایک ایسا اسلوب بناتے ہیں جو دیگر شاعرات کے ہاں ملنا مشکل ہے۔ ہم مدعو کر رہے ہیں ناصرہ زبیری صاحبہ کو۔ آج کے دن کے حوالے سے ایک نظم جس کا عنوان بھی عورت ذات، جلتا سورج راہیں لمبی، جلتا سورج راہیں لمبی، ننگے پاؤں دور ہے ندی، ٹیڑھا پینڈا گہری وادی، موڑ مڑے گی کب پگ ڈنڈی، موڑ مڑے گی کب پگ ڈنڈی، کبھی میں رکھوں راکھ پہ آنکھیں، کبھی اٹھاؤں رکھ کے گگری، کبھی میں رکھوں راکھ پہ آنکھیں، کبھی اٹھاؤں رکھ کے گگری، کبھی یہ سوچوں کنکر پتھر توڑ نہ ڈالے میری جھجری، کبھی یہ سوچوں کنکر پتھر توڑ نہ ڈالے میری جھجری،
निकालूं खुलता घूंघट, कभी समेटूं गिरती चुनरी, कभी निकालूं पैर से कांटा, कभी संभालूं सर पर मटकी, कभी निकालूं पैर से कांटा, कभी संभालूं सर पर मटकी, बहुत कठिन है डगर पनघट की। और एक और नज़्म पेश करती हूँ, उषा। इसका उन्वान है कारी। और मैं समझती हूँ कि जब हम हुकूक की बात करते हैं तो सबसे पहला हक तो जिंदा रहने का हक है। क्या बात है। तो इस हवाले से एक नज़्म है। जिसने मेरे कान में पिघला सीसा डाला बहरा था, जिसने मेरे कान में पिघला सीसा डाला बहरा था, जिसने मेरी आंखें फोड़ी खंजर से नाबीना था, जिसने मेरे चलते पांव काटे थे वो लंगड़ा था, जिसने मेरे होंठ सिए थे कांटों से वो गूंगा था, जिसने खद्दो खाल मिटाए मेरे वो बेचेहरा था, जिसने मेरी सांसें मुझसे छीनी थी वो मुर्दा था, जिसने मेरे कान में पिघला सीसा डाला बहरा था, जिसने मेरी आंखें फोड़ी खंजर से नाबीना था, जिसने मेरे चलते पांव काटे थे वो लगड़ा था, जिसने मेरे होंठ सिए थे कांटों से वो गूंगा था, जिसने खद्दो खाल मिटाए मेरे वो बेचेहरा था, जिसने मेरी सांसें मुझसे छीनी थी वो मुर्दा था। अंधे बहरे गूंगे मुर्दा बेचेहरों की इस बस्ती के बीच, अंधे बहरे गूंगे मुर्दा बेचेहरों की इस बस्ती के बीच, जिंदा है फिर भी देखो, जिंदा है फिर भी देखो मेरी साफ बसारत भी, मेरी तेज समात भी, अपने ही पाँव पे उठकर चल पड़ने की हिम्मत भी, अपनी बात सुनाने को ये गोयाई की ताकत भी, अपने दिल की चाहत भी है, अपने नाम की इज्जत भी, सोचों का संदेशा लाती जहाँ बशारत। नासरा ज़ुबैरी को आपने समाअत किया, और इससे पहले कि हम अपनी अगली शायरा को मदू करें, हम अपनी शायरात से ये कहना चाहेंगे कि उन्हें दाद देना ममनू नहीं है, वो भी एक दूसरे को आपस में दाद दे सकते हैं। उनकी मर्जी। लेकिन जब वो खुद पढ़ने आएंगी तो फिर दूसरों की भी मर्जी होगी, इसलिए कर भला हो भला। जिस शायरा को हम मदू कर रहे हैं, उस शायरे में उनका ये मकाम नहीं, लेकिन चूंकि उन्हें कहीं जाना है और उनका हुक्म है, इसलिए हम उन्हें मदू कर रहे हैं। आप खामोश हो तो हमारी आवाज़ आज जब खवातीन यहाँ बैठ गई हैं तो मालूम हुआ है कि औरतें बिला वजह बदनाम है कि वो ज़्यादा बोलती हैं। आप लोग खामोश हो जाए तो हम अपनी अगली शायरा को मदद करें। हमारी ये शायरा मज़ामती शायरी से जुड़ी हुई है, इखलाक़ी अंदाज में लिखती हैं, रोशन ख़याली की जो मजबूत रिवायत है उसे लेकर आगे बढ़ी है और अपने अंदाज में उसे उन्होंने मज़ीद आगे बढ़ाया है। मुशायरों में कम कम शरीक होती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी शायरी लोगों तक पहुँचती है, बल्कि कहना ये चाहिए कि लोग उनकी शायरी ढूंढ कर उनकी शायरी तक पहुँचते हैं और उनकी शायरी को पसंद करते हैं। तशरीफ़ लाती हैं हमारी सीनियर शायरा डॉक्टर सहर इल्ला। बहुत शुक्रिया की इजाज़त से। तो आर्ट्स काउंसिल को बहुत मुबारकबाद इस कदम खूबसूरत और शानदार ख़वातीन हमारे सारे सेशंस बहुत अच्छे। नज़्म है आज के दिन के हवाले से। नज़्म का उन्वान है आँखों में वो जोत जला दे, आँखों में वो जोत जला दे। आज का दिन है तेरा सखीरी, आज के दिन
आज का दिन है तेरा सखीरी, आज के दिन लफ्जों को फौलाद बना ले। आज का दिन है तेरा सखीरी, आज के दिन लफ्जों को फौलाद बना ले और नर्म मुलायम हाथों का मुक्का एक बना ले। नर्म मुलायम हाथों का मुक्का एक बना ले। कोमल शीतल हृदय में एतमाद का नगर बसा। कोमल शीतल हृदय में एतमाद का नगर बसा ले। तूफानों से बुझ न सके जो आंखों में वो जोत जला ले। तूफानों से बुझ न सके जो आंखों में वो जोत जला ले। आज का दिन है अपना सखीरी, आज के दिन लफ्जों को फौलाद बना। लालो लाल लतीफ ने प्यारी, शाह तो लतीफ पिटाई सिंह के बड़े शायर हैं और क्लासिकल। वो जिस जमाने में फेमिनिज्म का नाम भी नहीं था, मैं कहती हूँ कि शाह लतीफ से बड़ा फेमिनिस्ट शायर इस पूरे मशरक में और कोई नहीं पैदा हुआ है। उनकी जो सूरमियाँ हैं हीरोइंस, सोहनी जैसी कैरेक्टर उन्होंने बनाया, माधवी जैसा किरदार उन्होंने। तो लालो लाल लतीफ ने प्यारी तेरे लिए ही फरमाया। लालो लाल लतीफ ने प्यारी तेरे लिए ही फरमाया था। ऊंचे पर्वत के आगे झुकना नहीं है तुझे। ऊंचे पर्वत के आगे झुकना नहीं है तुझे सखीरी। रात अंधेरी बाट भी बेरी, रुकना नहीं है तुझे सखीरी। रात अंधेरी बाट भी बेरी, रुकना नहीं है तुझे सखीरी। खूंखार राहें रास्ता रोके, मुड़ना नहीं है तुझे सखीरी। अनजाने से डरना नहीं है, जीना है बस मरना नहीं है। अनजाने से डरना नहीं है, जीना है बस मरना नहीं है। आज का दिन है अपना सखीरी, आज के दिन लफ्जों को फौलाद बना। एक और नज़्म है मेरी, मस्त हवा का झोंका। मस्त हवा का झोंका। इस धरती की हरी भरी कोख से मैं जन्मी हूँ। इस धरती की हरी भरी कोख से मैं जन्मी हूँ। मेरी माँ और उसकी माँ और उसकी माँ, सबकी नाल इस धरती में दफनाई गई। सबकी नाल इस धरती में दफनाई गई और मरने के बाद चंद गज लट्ठे में लिपटे उनके जिस्म भी। एक दिन जब मैं उनकी तरह मर जाऊंगी, एक दिन जब मैं उनकी तरह मर जाऊंगी, इस धरती ही में जाऊंगी। एक दिन जब मैं उनकी तरह मर जाऊंगी, इस धरती ही में जाऊंगी। पर आज अभी मैं जिंदा हूँ। पर आज अभी मैं जिंदा हूँ और आज अभी मैं हंसती हूँ और आज अभी मैं रोती हूँ और हंसते रोते लम्हों के इन छोटे छोटे वक्फों में मैं और भला क्या करती हूँ। और हंसते रोते लम्हों के इन छोटे छोटे वक्फों में मैं और भला क्या करती हूँ। इससे किसका क्या मतलब। हाँ वाह क्या और हंसते रोते लम्हों के इन छोटे छोटे वक्फों में मैं और भला क्या करती हूँ। इससे किसका क्या मतलब। पर वो आंखें कांटों जैसी चुभती आंखें। पर वो आंखें कांटों जैसी चुभती आंखें मेरी टोह में रहती हैं। कांटों जैसी चुभती आंखें मेरी टोह में रहती हैं और देखते देखते वो आंखें कई आंखें और देखते देखते वो आंखें कई आंखें बन जाती हैं।
कांटों जैसी चुभती कई आंखें बन जाती हैं कांटों जैसी चुभती आंखें और मैं खिलाती बल खाती अपनी ही धुन में हंसती गाती उनके बीचों बीच से ऐसे गुजरती जाती हूँ जैसे गुजरता जाता है कांटों की बाढ़ से मस्त हवा का और मैं खिलाती बल खाती अपनी ही धुन में हंसती गाती उनके बीचों बीच से ऐसे गुजरती जाती हूँ जैसे गुजरता जाता है कांटों की बाढ़ से मस्त हवा का एक समाप्त किया और अब हम दावत कलाम दे रहे हैं बरतानिया से तशरीफ़ लाई हमारी मेहमान शायरा नजमा उस्मान साहिबा को। आप बरतानिया में मुकीम हैं और वहाँ उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आपकी शायरी में आज की औरत के सवाब व अज़ाब भी हैं और उसके वो माशरती और समाजी मसाइल भी जिनका वो सामना कर रही है। समाअत कीजिए मोहतरमा नजमा उस्मान। बहुत शुक्रिया खूबसूरत तारुफ का जी। आज जैसे हमारे इससे पहले की शायरा अपना कलाम सुनाती रही हैं औरतों का आदमी देने के हवाले से मेरे पास इस वक्त ना फराजी मौका है ना ऐसी कोई नज़में हैं उनकी माशाल्लाह उन्होंने पेश की इस हवाले से। एक नज़्म है उसका उन्वान है मैका, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी क्योंकि उसमें आप ये देखिए कि औरत के जितने भी रिश्ते हैं जितने रंग में सब मिलते हैं माँ का भी और बेटी का भी और उसके हवाले से ये बड़ी मुनफरिद नज़्म थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं पेश करती हूँ सादे सरजा से। उन्वान है मैका। तैयारे गैर में फिर लौट आने की खुशी भी मुख्तसर सी थी। तैयारे गैर में फिर लौट आने की खुशी भी मुख्तसर सी थी। मेरी माँ ने मेरी बिखरी हुई चीज़ें समेटी और न मालूम सी आवाज में बोली, मेरी बेटी संभल के तुमको रहना है कि ये मेरा नहीं है अब तुम्हारे भाई का घर है। मेरी माँ ने मेरी बिखरी हुई चीजें समेटी और न मालूम सी आवाज में बोली, मेरी बेटी संभल के तुमको रहना है कि ये मेरा नहीं है अब तुम्हारे भाई का घर है। मैं रोने और बिखरने के तरद्दुद से गुजरकर सोचती हूँ मेरा मैका तो मेरे बाप ही के साथ उनकी कब्र में लेटा हुआ है। और नज़्म है कि मलाल की कहानियाँ कहूँ के लिए फाड़ दूँ, मलाल की कहानियाँ कहूँ के लिख के फाड़ दूँ, बस इस तवील सोच में तमाम दिन गुजर गया। जो घर के सारे काम थे वजूद पड़े और एक नज़्म है कि हमारे दरमियाँ एक सर्द खामोशी का रिश्ता है। हमारे दरमियाँ एक सर्द खामोशी का रिश्ता है। बहुत मजबूर होकर गुफ्तगू करनी पड़ेगी तो बड़ी बेरब्त होती है। बहुत मजबूर होकर गुफ्तगू करनी पड़ेगी तो बड़ी बेरब्त होती है। कभी अल्फाज होठों से फिसलकर ऐसे गिरते हैं मानी लड़खड़ा जाते हैं और ये गुफ्तगू आवाज में दम तोड़ देती है। कभी अल्फाज होठों से फिसलकर ऐसे गिरते हैं मानी लड़खड़ा जाते हैं और ये गुफ्तगू आवाज में दम तोड़ देती है। हमारे दरमियाँ
इस सर्द खामोशी के रिश्ते ने हमारी दूरियों के साथ हमको बांध रखा है। आप अशार है कि जमाना साज अदा का हुनर समेट लिया, जमाना साज अदा का हुनर समेट लिया, मेरे लिए तो नहीं था मगर समेट लिया। और थकन उतार के रख दी हवा के रास्ते में, थकन उतार के रख दी हवा के रास्ते में, उड़ा दी गर्द में मंजिल सफर समेट लिया, उड़ा दी गर्द में मंजिल सफर समेट लिया। और ये देखिए खालिस इस्माइल लहजा कि ख्यालो ख्वाब की दुनिया को पाश पाश किया, ख्यालो ख्वाब की दुनिया को पाश पाश किया, वजूद अपना बखेरा घर समेट लिया। ख्यालो ख्वाब की दुनिया को पाश पाश किया, वजूद अपना बखेरा घर समेट लिया। लाइन तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी नज़में और ऐसी शायरी नहीं है, हालांकि जो चीज़ें उन्होंने सुनाई वो उससे कहीं ज़्यादा दिलदोज़ थी, सिर्फ महसूस करने की बात है। और अब हम जिस शायरा को बुला रहे हैं उनकी शायरी में बहुत संभला हुआ लहजा मिलता है और एक ऐसा बर्ताव जो रिवायत के गहरे शऊर से वाबस्ता है। आपकी शायरी में एहतजाज की लहर बहुत नुमायां नहीं है, लेकिन एक तवाज़ुन के साथ मिलती है। आप एक अदबी जरीदे अदब लतीफ़ की मुदीरा भी हैं, तशरीफ़ लाती हैं मोहतरमा हिजाब अब्बासी। अदब आलिया की मुदीरा हैं मोहतरमा हिजाब अब्बासी। यार मुशायरों में बहुत कम आती है ना, इसलिए कब बुलाएंगे तो कम आएंगे। हमने आपको 2 बार बुलाया, आप आई नहीं, इसलिए आप हमसे शिकायत नहीं कर सकते। सदर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची अहमद शाह साहब भी तशरीफ ले आएंगे। हालत हाजरा पर 3 अशार पेश करूंगी। वो हालत हाजरा जो बरसों से चल रहा है उन पर कि कल जो देखा था मैंने और आप माइक में पूरा अपने दिए कि कल जो देखा था नहीं, माइक थोड़ा ऊंचा। कल जो देखा था तो बेदार भी देखा होता, कल जो देखा था तो बेदार भी देखा होता, हाकिम ने वक्त का किरदार भी देखा होता। कल जो देखा था तो बेदार भी देखा होता, हाकिम ने वक्त का किरदार भी देखा होता। बस ये देखा कि वो मिंबर पे बहुत सजता है, बस ये देखा कि वो मिंबर पे बहुत सजता है, ज़र्फ उसका पसे गुफ्तार भी देखा होता। बस ये देखा कि वो मिंबर पे बहुत सजता है, ज़र्फ उसका पसे गुफ्तार भी देखा होता। पसाए दीवार कसीदे तो बहुत देखे थे, पसाए दीवार कसीदे तो बहुत देखे थे, पर किसी दिन पसे दीवार भी देखा होता। पसाए दीवार कसीदे तो बहुत देखे थे, पर किसी दिन पसे दीवार भी देखा होता। शार पे चुप खड़ी हूँ पसे दीवार मैं कब बोलती हूँ, चुप खड़ी हूँ पसे दीवार मैं कब बोलती हूँ। नहीं सुनाई देगा, यहाँ से जो अच्छा ना लगे आप एक्शन भी ले सकते हैं। चुप खड़ी हूँ पसे दीवार मैं कब बोलती हूँ, बोलता है मेरा किरदार मैं कब बोलती हूँ। चुप खड़ी हूँ पसे दीवार मैं कब बोलती हूँ, बोलता है मेरा किरदार मैं कब बोलती हूँ। सर निगू मोहत बलक
मैं तो खड़ी हूँ कब से, ये सर्दी को मोहर पलक, मैं तो खड़ी हूँ कब से, बोलते हैं दरो दीवार, मैं कब बोलती, ये बोलते हैं दरो दीवार, मैं कब बोलती हूँ, और जो तुझे चाट रही है किसी दीमक की तरह, जो तुझे चाट रही है किसी दीमक की तरह, आ गई की है ये गुस्ताख, मैं कब बोलती हूँ, और एक मुद्दत से हूँ सहरा की मुसाफिर, फिर भी एक मुद्दत से हूँ सहरा की मुसाफिर, फिर भी याद जब आता है घर बार, मैं कब बोलती हूँ, एक मुद्दत से हूँ सहरा की मुसाफिर, फिर भी याद जब आता है घर बार, मैं कब बोलती हूँ, और मोतबर शहर हुनर में मुझे रखने के लिए, मोतबर शहर हुनर में मुझे रखने के लिए, बोलती हैं मेरे अफकार, मैं कब बोलती हूँ, मोतबर शहर हुनर में मुझे रखने के लिए, बोलते हैं मेरे अफकार, मैं कब बोलती हूँ, और चुपके सहरा की खामोशी नहीं तोड़ी मैंने, चुपके सहरा की खामोशी नहीं तोड़ी मैंने, उसने पूछा है कई बार, मैं कब बोलती हूँ, चुपके सहरा की खामोशी नहीं तोड़ी मैंने, उसने पूछा है कई बार, मैं कब बोलती हूँ, दर्द मौसम को रखा दिल में छुपाकर, फिर भी दर्द मौसम को रखा दिल में छुपाकर, फिर भी आप कर देती है इजहार, मैं कब बोलती हूँ, दर्द मौसम को रखा दिल में छुपाकर, फिर भी आप कर देती है इजहार, मैं कब बोलती हूँ, और तेरे लफ्ज़ उड़ान दे। मुझे वैसे भी याद नहीं, लेकिन मैं ज़बानी क्योंकि वो दूसरी लाइन, जो गर्दिशों की जद पे थे वो क्या जहान देखते, जो गर्दिशों की जद पे थे वो क्या जहान देखते, गुजर गई है उम्र सूए आसमान देखते, गुजर गई है उम्र सूए आसमान देखते, और असीर करके कह दिया कि असीर करके कह दिया कि बालों पर में दम नहीं, असीर करके कह दिया कि बालों पर में दम नहीं, दरे कफस जो खोलते तो फिर उड़ान देखते, असीर करके कह दिया, असीर करके कह दिया कि बालों पर में दम नहीं, दरे कफस जो खोलते फिर उड़ान देखते। मैंने इनकी फरमाइश पे तीन अशार और पेश करके इजाजत चाहूँगी। हम बेनियाज़े सूदो ज़ियां बोलते रहे, हम बेनियाज़े सूदो ज़ियां बोलते रहे, जैसे कि सुन रहा हो जहां बोलते रहे, और अंदाज़े गुफ्तगू ने हमें मोतबर किया, कि अंदाज़े गुफ्तगू ने हमें मोतबर किया, वरना बहुत से लोग यहाँ बोलते रहे, अंदाज़े गुफ्तगू ने हमें मोतबर किया, वरना बहुत से लोग यहाँ बोलते रहे, और हम बोलने के वक्त पे गुमसुम खड़े रहे, हम बोलने के वक्त पे गुमसुम खड़े रहे, रहना था चुप जहाँ पे वहाँ बोलते रहे, हम बोलने के वक्त पे गुमसुम खड़े रहे, रहना था चुप जहाँ पे वहाँ बोलते रहे। बहुत ये थी मोहतरमा हिजाब अब्बासी, जो मैं कब बोलती हूँ उससे कलाम आगाज किया और बोलते रहे फिर और अब हम जिस शायरा को यहाँ दावत कलाम दे रहे हैं वो आप सबकी जानी पहचानी शायरा हैं। उनका लहजा ही अलग है, उनके तेवर ही अलग हैं। उनकी शायरी में चाहे वो ये ना कहें कि बागी औरत है, मगर लहजा ही बागियाना है, तेवर ही बागियाना है। तशरीफ़ लाती हैं कई किताबों की खालिक मोहतरमा रेहाना रूही। बहुत खुशी है मुझे तो फख्र है इस बात पर आज, और हमेशा होता है कि जब मैं ईश्वर को अपनी शायरी सुनाती हूँ, जब कोई मेरे सामने थे, आज तो माशाल्लाह वो सदर है, और मुझे फख्र है इस बात पर कि ईश्वर मैंने आपकी राह को बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ है।
फॉलो करेंगे जो आपने ईश्वर से भी तो पूछो मजबूती से पकड़ा नहीं पकड़ा। ईश्वर को मैं ये साबित कर लूँगी कि पकड़ा है। अच्छा, अभी मैंने आज कुछ अशआर लिखे हालत हाजरा पर, मुशायरे के शौक पर एक चंद अशआर हैं जो मैं पेश करती हूँ। 3 एक शायरा से मैंने कहा, प्यारी शायरा, एक शायरा से मैंने कहा, प्यारी शायरा, ऐ नज़्म की गज़ल की रुबाई की माहिरा, क्या आपको नहीं है कोरोना का कोई खौफ? क्या आपको नहीं है कोरोना का कोई खौफ? कर लेती एहतियात का कुछ तो मुजाहिरा। कहने लगी मैं मास्क तो लाई हूँ अपने साथ, कहने लगी मैं मास्क तो लाई हूँ अपने साथ, लेकिन जरा मैं पढ़ लूँ पहले मुशायरा, लेकिन जरा मैं पढ़ तो लूँ पहले मुशायरा। तो ये शौक देखें कि इस मजमे में शायरी हो रही है, मजमा हो रहा है। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए और मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मानती हूँ, मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मानती हूँ। इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। अब तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुखसत, अब तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। और मेरी पहचान को काफी है अगर मेरी शनाख्त, मेरी पहचान को काफी है अगर मेरी शनाख्त, फिर मुझे ही मेरी पहचान क्यों ना फिर मुझे मेरी पहचान ही समझा जाए। अच्छा, अभी मैं पेश कर रही हूँ ईश्वर, इसमें मैंने औरत के कुछ रंग पेश किए हैं, देखिएगा अलग अलग कि ख्याल हूँ कि हकीकत, अफजाल भाई आपकी तवज्जो चाहूँगी कि ख्याल हूँ कि हकीकत के ख्वाब औरत हूँ, ख्याल हूँ कि हकीकत के ख्वाब औरत हूँ, हर एक सवाल का जिंदा जवाब, हर एक सवाल का जिंदा जवाब औरत हूँ। महक रहा है चमनज़ारे दिलबरी मुझसे, महक रहा है चमनज़ारे दिलबरी मुझसे, मैं यासमीन और चमेली गुलाब औरत हूँ, मैं यासमीन और चमेली गुलाब औरत हूँ। और झलक रही हूँ कहीं पर, कहीं पे हूँ ओझल, झलक रही हूँ कहीं पर, कहीं पे हूँ ओझल, नकाब पर्दा चिलमन हिजाब औरत हूँ, नकाब पर्दा चिलमन हिजाब औरत हूँ। और जहाँ जहाँ भी रिफाकत का एतबार मिला, आपके लिए ये शेर है, आप जैसे उन लोगों के लिए जो हमें हमारी रिफाकत निभाते हैं और हमें यहाँ पहुँचाते हैं, उनके लिए कि जहाँ जहाँ भी रिफाकत का एतबार मिला, वहाँ वहाँ पे बहुत कामयाब औरत हूँ, जहाँ जहाँ भी रिफाकत का एतबार मिला, वहाँ वहाँ पे बहुत कामयाब औरत हूँ। ईश्वर शेर आपके नाम करती हूँ मैं, कोई शुमार नहीं मेरी बेशुमारी का, कोई शुमार नहीं मेरी बेशुमारी का, गिनी न जा सकूं वो बेहिसाब औरत हूँ, कोई शुमार नहीं मेरी बेशुमारी का, गिनी न जा सकूं वो बेहिसाब औरत हूँ। और तवज्जो चाहूंगी कि बकदर ज़र्फ़ मयस्सर हूँ हर ज़रूरत को, बकदर ज़र्फ़ मयस्सर हूँ हर ज़रूरत को, कहीं पे माँ कहीं खाना खराब औरत हूँ, बकदर ज़र्फ़ मयस्सर हूँ हर ज़रूरत को, कहीं पे माँ कहीं खाना खराब औरत हूँ। मेरे वजूद का नाजुक है शीशाए हस्ती, मेरे वजूद का नाजुक है शीशाए हस्ती,
बहुत संभाल के रखना जनाब, औरत बहुत संभाल के रखना जनाब। औरत मोर ऑब्जर्व एक डायमेंशन कि हम जब ये सब काम करते हैं तो अकेले भी निकल के हर जगह चले जाते हैं और मिलते हैं सब लोगों में। तो उसके बिहाफ पे शेर को मैंने कहा, कोई गुमान न रखे मेरी खुश मिजाजी पर, कोई गुमान न रखे मेरी खुश बयानी पर, मिजाज बिगड़े तो रूही अज़ाब औरत है। कोई गुमान न रखे मेरी खुश बयानी पर, मिजाज बिगड़े तो रूही अज़ाब कोई अज़ाब औरत हूँ, कोई शुमार नहीं मेरी बेशुमारी क्या, गिनी न जा सकूं वो बेहिसाब औरत। रेहाना रूही साहिबा को आपने समाअत किया और हमारी अगली शायरा, उनकी शायरी रिवायत के गहरे शऊर से परवान चढ़ती है और उनके हाथ ईसाई लहजे में औरत के दुख सुख मिलते हैं। उन्होंने औरत के उस शऊर को बयान किया है जो हमारे यहाँ आम तौर पर ख़वातीन के कलाम में इस सतह पर नज़र नहीं आता है। ये शऊर वो है जो हमें जदीद औरत और उसके मसाइल से जोड़ता है। आप गज़लें नज़में दोनों कहती हैं, तहत और तरन्नुम दोनों से पढ़ती हैं। बहुत मुतहर्रिक शायरा हैं, बहुत अहम शायरा हैं हमारे शहर की। तशरीफ़ लाती हैं मोहतरमा नसीम नाज़िश। आपने पर्पल कलर की किताब छापी है, ये यूनाइटेड नेशन का एक साल का औरत का थीम की आपकी किताब, इसीलिए ये पीछे पर्पल कलर है और आपका दुपट्टा भी पर्पल है। नाज़िम पेश करें, ऐ हव्वा की बेटी, कैसे मिलेगा तुझको तेरा हक, कौन करे ये गौर, कैसे मिलेगा तुझको तेरा हक, कौन करे ये गौर, वही जहेज की लानत है और वही पुराने दौर, वही जहेज की लानत है और वही पुराने दौर, कब जागेगी तेरी किस्मत, कब बदलेगा दौर, कब जागेगी तेरी किस्मत, कब बदलेगा दौर, कब टूटेंगे जुल्म के जिंदा, कब जागेगी धरती, ऐ हवा की बेटी, ऐ हवा की बेटी। कारे नफस कोई सहल नहीं है, ये पैकार भी है, जहल से कारे नफस कोई सहल नहीं है, ये पैकार भी है, और जहल से रहना दूर कि ये वजह आज़ार भी है, जहल से रहना दूर कि ये वजह आज़ार भी है, इल्म का ज़ेवर भी है, इल्म का ज़ेवर भी है और तलवार भी है, जिसको कोई लूट ना पाए, इल्म है वो पूंजी, खुतबा ज़ैनब लहजा तेरा, कूफा हो या शाम, खुतबा ज़ैनब लहजा तेरा, कूफा हो या शाम, फातिमा ज़हरा की सीरत है तेरे लिए नाम, फातिमा ज़हरा की सीरत है तेरे लिए नाम, गोद है तेरी मक्तबे अव्वल, ऊंचा तेरा नाम, काश तेरी अज़मत को पहचाने, काश तेरी अज़मत पहचाने मर्दों की बस्ती, है हवा की बेटी, है हवा की बेटी। और हरफ़े मोहब्बत
तेरा आलम है, तुझको मेरा सलाम। हर्फ मोहब्बत तेरा आलम है, तुझको मेरा सलाम। तेरा हासिल दीदा नम है, तुझको मेरा सलाम। हर्फ मोहब्बत तेरा आलम है, तुझको मेरा सलाम। तेरा हासिल दीदा नम है, तुझको मेरा सलाम। जन्नत तेरे ज़ेरे कदम है, तुझको मेरा सलाम। जन्नत तेरे ज़ेरे कदम है, तुझको मेरा सलाम। तुझ में जो ईसार है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। है हवा की बेटी, हवा। आदम। एक नज़्म और आपकी खिदमत में, जिसका उन्वान है कड़वा सच। मैं फकत जिस्म नहीं ज़हन भी हूँ। मैं फकत जिस्म नहीं ज़हन भी हूँ। सब कसीदे लबो रुखसार के बरहक होते हैं। सब कसीदे लबो रुखसार के बरहक, लेकिन चश्मे महबूब के उधर कामते शमशाद के साथ। चश्मे महबूब के उधर कामते शमशाद के साथ। जुल्फे बेजां से परे मेरी एक सोच भी है। मेरी एक सोच भी है, मेरी एक फिक्र भी है। मैं के तख्लीक़े बशर का हूँ वसीला, लेकिन मैं के तख्लीक़े बशर का हूँ वसीला, लेकिन क्यों दिखाई नहीं देता, क्यों दिखाई नहीं देता है तुम्हें मेरा शऊर। क्यों दिखाई नहीं देता है तुम्हें मेरा शऊर। मेरी दानिश की कई रंग हैं तारीफ के पास। मेरी दानिश की कई रंग हैं तारीफ के पास। मेरे अफकार, मेरी राय, मेरी तर्ज ख्याल। मेरे अफकार, मेरी राय, मेरा तर्ज ख्याल। इनकी तौक़ीर करो, इनकी तौक़ीर करो। तुमने औरत को फ़क़त हूर शिमाइल समझा। तुमने औरत को फ़क़त हूर शिमाइल समझा। नाबके इश्क का घायल समझा। नाबके इश्क का घायल समझा। तुमने औरत को फ़क़त हूर शिमाइल समझा। तुमने सदियों से अधूरा मुझे तस्लीम किया। इसमें तरमीम करो। क्या कहते हैं? तुमने औरत को फ़क़त हूर शिमाइल समझा। नावके इश्क का घायल समझा। तुमने सदियों से अधूरा मुझे तस्लीम किया। इसमें तरमीम करो, सच की ताज़ीम करो। मैं फ़क़त जिस्म नहीं ज़हन भी हूँ। मैं इकाई हूँ, मुकम्मल मुझे तस्लीम। मैं फ़क़त जिस्म नहीं ज़हन भी हूँ। मैं इकाई हूँ, मुकम्मल मुझे तस्लीम करो। मैं फ़क़त जिस्म नहीं ज़हन भी हूँ। सब कसीदे लबो रुखसार के बहक, लेकिन चश्मे महबूब के उधर कामते शमशाद के साथ। जुल्फ़े पेचा से परे मेरी एक सोच भी है। जुल्फ़े पेचा से परे मेरी एक सोच भी है, मेरी एक फिक्र भी है। मुझको तस्लीम करो। मोहतरमा नसीम नाजिश को आपने समाअत किया। ख़वातीन और हज़रात, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची ने ये विमेंस कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ा मुनक़िद की और उसमें आप ख़वातीन मुशायरा देख रहे हैं, जिसकी सदारत हमारे मुल्क की बल्कि उर्दू अदब की नहायत मोतबर और सीनियर शायरा किश्वर नाहीद साहिबा फरमा रही हैं। और अब इस मुशायरे में हम जिस शायरा को मदऊ कर रहे हैं, उनकी शायरी में ज़ाती दुख सुख भी है और समाजी मसाइल का बयान भी मिलता है। उनके यहाँ जो हमारे अहद के सवाब व अज़ाब हैं, ख्वाब और शिकस्त ख्वाब,
जबर और उस जबर के खिलाफ जो एक एहतजाजी रवैया है वो भी मिलता है। आप चराग नीम शब की लौ से एक नई सुबह कशीद करने की आरज़ू रखती है। जदीद और कदीम असालीब के दरमियान अपने लहजे के तवाज़ुन से अपनी इनफरादियत कायम की है। तशरीफ़ लाती हैं डॉक्टर फातिमा हसन। डॉक्टर साहब, आप 8 मार्च के हवाले से कोई आपकी जो बात गुजरे हैं। जी तहजीब का सफ़र दरअसल औरत ने ही तय किया है, लेकिन तारीख में लिखा नहीं किया। गज़ल में बड़ी गुंजाइश है तो मैंने इसको लिखा है। रूई के गाले से धागे का सफ़र मेरा ही था, रूई के गाले से धागे का सफ़र मेरा ही था, और मिट्टी से बना छोटा सा घर मेरा ही था। रूई के धागे से गाले का रूई के गाले से धागे का सफ़र मेरा ही था, और मिट्टी से बना छोटा सा घर मेरा ही था। धान के खेतों में मेरी उंगलियों का लम्स है, धान के खेतों में मेरी उंगलियों का लम्स है, दाने को खाना बनाने का हुनर मेरा ही था। धान के खेतों में मेरी उंगलियों का लम्स है, दाने को खाना बनाने का हुनर मेरा ही था। पेड़ पौधों और बच्चों और बूढ़ों की खुशी, पेड़ पौधों और बच्चों और बूढ़ों की खुशी, साए की खातिर लगाया हर शजर मेरा ही था। साए की खातिर लगाया हर शजर मेरा ही था, और जिसके आंगन को सजाया खाक से और फूल से, जिसके आंगन को सजाया खाक से और फूल से, खुशबुओं की राह में खुलता वो दर मेरा ही था। जिसके आंगन को सजाया खाक से और फूल से, खुशबुओं की राह में खुलता वो दर मेरा ही था। और जिस जगह नफरत न हो और जुल्म की ताकत न हो, जिस जगह नफरत न हो और जुल्म की ताकत न हो, खाक की सरहद तलक फैला नगर मेरा ही था। जिस जगह नफरत न हो और जुल्म की ताकत न हो, खाक की सरहद तलक फैला नगर मेरा ही था। और शेर है कि उनका क्या है जो जुनूने जंग में है मुब्तला, उनका क्या है जो जुनूने औरत को कमजोर कहा जाता है, दरअसल वो जंग के खिलाफ है। उनका क्या है जो जुनूने जंग में है मुब्तला, जल न जाए फिर कहीं धरती ये डर मेरा ही था। जल न जाए फिर कहीं धरती ये डर मेरा ही था, और गोद में मेरी जन्म लेती रही है जिंदगी, गोद में मेरी जन्म लेती रही है जिंदगी, जिंदगी को जिंदगी करना हुनर मेरा ही था। गोद में मेरी जन्म लेती रही है जिंदगी, जिंदगी को जिंदगी करना हुनर मेरा ही था। और वो सबकी फरमाइश थी तो मैं सुना देती हूँ कि आंखों में न जुल्फों में न रुखसार में देखे, आंखों में न जुल्फों में न रुखसार में देखे, मुझको मेरी दानिश मेरे अवतार में देखे, मुझको मेरी दानिश मेरे अवतार में देखे। मलबूस बदन देखे रंगीन कबा में, अब पैर हजे ज़ात को इज़हार में देखे। और सौ रंग मज़ामीन है जब लिखने पे आऊं, गुलदस्ते मानी मेरे अशार में देखे। पूरी ना अधूरी हूँ न कमतर हूँ न बरतर, पूरी ना अधूरी हूँ न कमतर हूँ न बरतर, इंसान हूँ इंसान के मेयार में देखे, इंसान हूँ इंसान के मेयार में देखे। रखे हैं कदम मैंने भी तारों की ज़मीं पर, रखे हैं कदम मैंने भी तारों
फजाए अपने ही नहीं मेरे भी अतवार में देखे, अपने ही नहीं मेरे भी अतवार में देखे। कब चाह के सामान तिजारत हमें समझे, कब चाह के सामान तिजारत हमें समझे, लाए थे हमें आप ही बाजार में देखे, लाए थे हमें आप ही बाजार में देखे। और उस कादिर मुतलक ने बनाया है हमें भी, उस कादिर मुतलक ने बनाया है हमें भी, तामीर की खूबी उसी मेहमार में देखे, तामीर की खूबी उसी मेहमार में देखे। आँखों में न जुल्फों में न रुखसार में देखे, मुझको मेरी दानिश मेरे अफकार में। ये पहली औरत कॉन्फ्रेंस जो आर्ट्स काउंसिल में मुनक़्क़िद की गई है, उसमें इस वक्त ये आलमी ख़वातीन मुशायरा हो रहा है। तो अब हम जिस शायरा को मदऊ कर रहे हैं वो कनाडा में मुक़ीम हैं, और उनकी शायरी में हमें वो जुर्रतमंदी मिलती है जो आम तौर पर ख़वातीन के यहाँ नज़र नहीं आती। उन्होंने बहुत खूबसूरत गज़लों के साथ साथ बहुत अहम नज़में भी कही हैं, और औरतों के बाद ऐसे इशूज़ को उठाए हैं जिस पर कुछ बाज़ ख़वातीन भी लिखते हुए थोड़ी गुरेज़ा नज़र आती हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ उन इशूज़ को अपनी शायरी में बयान किया है। हम मदऊ कर रहे हैं कनाडा से तशरीफ़ लाई हमारी मोहतरम शायरा नसीम सैयद को तशरीफ़ लाई। आइए। मैं दिल की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। पहली कॉन्फ्रेंस ख़वातीन की और इतनी शानदार हुई है कि इसकी हमें बाकायदा रिपोर्ट करनी होगी, तस्वीरें शायद करनी होगी। दिल की मुबारकबाद। एक मेरी दोस्त है शायरा सनम का एक मिसरा है, उसी से इस्तेफादा किया है कि मैंने उन सब चिड़ियों के पर काट दिए। तो मेरी तीन सफ़र की एक छोटी सी नज़म है कि खौफ की छोटी छोटी चिड़ियाँ मेरे बचपन से जो मुझ में रह पड़ी थी, खौफ की छोटी छोटी चिड़ियाँ मेरे बचपन से जो मुझ में रह पड़ी थी, ताकीदों की जिनके परों में गिरे लगी थी, मैंने उन सब चिड़ियों के पर खोल दी। ये कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि फ़ौरन मैं कोई नज़म लिखूं और उसी दिन पढ़ा हो, अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो मौजू है, ये जो गुस्सा दिखाई दे रहा है हमें लोगों में और जो तकलीफ़ नज़र आ रही है, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, ये बहुत पुरानी है, ये नई नहीं है। इसलिए ये नज़म आज ही हुई है और मैं आज पहली बार में इस नज़म की शायरी पढ़ी। तुम आखिर इस कदर नाराज़ क्यों हो? तुम आखिर इस कदर नाराज़ क्यों हो? बात तो समझो। न जाने क्यों बिगड़ जाते हो हम जब भी किसी एहसास महरूमी को, मजबूरी को, जबरो जुल्म को तस्वीर करते हैं। न जाने क्यों बिगड़ जाते हो हम जब भी किसी एहसास महरूमी को, मजबूरी को, जबरो जुल्म को तस्वीर करते हैं। चलो तुम ही बताओ, चलो तुम ही बताओ, तुमने जो अब तक हमारे वास्ते दस्तूर लिखे हैं, चलो तुम ही बताओ, तुमने जो अब तक हमारे वास्ते दस्तूर लिखे हैं, मैं इनकी कौन सी शिक, कौन से अहकाम पर उंगली धरूं, एक को तफसील से पढ़कर सुनाऊं। नहीं तो यूं करो, जूतों में मेरे पैर डालो और मेरे साथ आओ। तुम्हें नाजायज और जायज की सब तफसील तो अजबर है ना,
तुम्हें नाजायज हो जायज की सब तफसील तो अजबर है ना, तो देखो ये कतारें औरतों की सर झुकाए लूट के सामान में लाई गई हैं। तो देखो औरतों की सर झुकाए, और तो देखो ये कतारें औरतों की सर झुकाए लूट के सामान में लाई गई हैं। इनके माथे पर दहकते सुर्ख अंगारे से एक फरमान लिखा है। इनके माथे पर दहकते सुर्ख अंगारे से एक फरमान लिखा है, ये सब जायज कनीजे हैं। बदन इनका है लेकिन इस बदन पर किसके जिस्मों की हुकूमत है। जरा सी देर को खुद को इसी जायज गुलामी में धरो, जरा सी देर को खुद को इसी जायज गुलामी में धरो जाना, बताओ कौन सी तजलील का एहसास होता है। लेकिन इस बदन पर किसके जिस्मों की हुकूमत है, जरा सी देर को खुद को इसी जायज गुलामी में धरो जाना, बताओ कौन सी तजलील का एहसास होता है, बताओ कैसा लगता है। ये छोटी छोटी कब्रें देखते हो, ये छोटी छोटी कब्रें देखते हो, हमारा सांस लेता जिस्म इसमें दफन है प्यारे। हमारा सांस लेता जिस्म इसमें दफन है प्यारे। हमें मालूम है बरजस्ता कह दोगे पुरानी बात है ये तो, हमें मालूम है बरजस्ता कह दोगे पुरानी बात है ये तो। हाँ ये कहने को पुरानी बात है, हाँ ये कहने को पुरानी बात है, लेकिन ये कब्रिस्तान ये कब्रें जमानों का सफर करती हमारे नाम पर ये वक्फ रहती हैं। मदरसों बैठकों खेतों में बाइज्जत घरों के गूंगे कमरों अंधे ताकों में ये मुंह खोले हमें जिंदा लगे निगल लेने पे कादिर हैं। जरा सी देर को उतरो इन्हीं कब्रों में और समझो कि एक एक सांस कैसे टूटती है। जरा सी देर को उतरो इन्हीं कब्रों में और समझो कि एक एक सांस कैसे टूटती है, और बदन अपने और बदन कीचड़ में, और बदन को अपने कीचड़ में बदलता देखना आंखों से अपनी कैसा लगता है। और समझो कि एक एक सांस कैसे टूटती है, और बदन को अपने कीचड़ में बदलते देखना आंखों से अपनी कैसा लगता है। ये कीचड़ चख के देखो, ये कीचड़ चख के देखो और बताओ जायका ये कैसा लगता है। ये कीचड़ चख के देखो और बताओ जायका ये कैसा लगता है। उधर देखो, उधर देखो, चिता पर जिंदा जलती औरतों के पिघले जिस्मों की तरफ देखो। उधर देखो, चिता पर जिंदा जलती औरतों के पिघले जिस्मों की तरफ देखो। इधर देखो, इधर ये पिघले चेहरों की कतारें हैं। इधर देखो, इधर ये पिघले चेहरों की कतारें हैं। इधर देखो, ये चिताएं सैकड़ों अंदाज की हैं, क्या नहीं है। ये चिताएं सैकड़ों अंदाज की हैं, क्या नहीं है। हमारे जिस्म जिंदा जिस्म इनमें झोंके जाए और कहते हो कि अपने जिस्म को अपना कहा तो हम खफा होंगे। हमारे जिस्म इनमें झोंके जाए और कहते हो कि अपने जिस्म को अपना कहा तो हम खफा होंगे। सो जाना जानते हो, किसी भी जबर की जंजीर जब टूटे तो जाबिर दिल में लाते हैं। साना जाना जानते हो,
किसी भी जब की जंजीर जब टूटे तो जावेद दिल मिलाते हैं, नए दिन की बशारत को मगर अहले सितम कब रोक पाते। आपने समाज किया नसीम सैयद साहिबा को, और अब मुशायरा अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है। हमारे इस मुशायरे की बस आखिरी शायरा है और उसके बाद हमारे मुशायरे की सब्र, और फिर ये मुशायरा अपने अख्तिताम को पहुँचेगा। तो आप लोग तशरीफ़ फरमा रहें और समातों को भी बेदार रखें और दाद भी दें कि यकीनन ये बहुत फ़िक्री शायरी है जो आज आप यहाँ सुन रहे हैं। और आपको एहसास होगा कि ख़वातीन जिनके मसाइल बज़ाहिर एक से लगते हैं, जिनके मौज़ूआत बज़ाहिर एक से लगते हैं, लेकिन उनके असालीब, उनके रंग कितने मुख्तलिफ हैं। अब हम जिस शायरा को बुला रहे हैं उनका अपना एक रंग है। उन्होंने गज़लें कहीं और बहुत कमाल की गज़लें कहीं, फिर नस्री नज़में कहने लगी और अब गालिबन नस्री नज़में ही कह रही हैं। कई शेरी मजमूए मंज़र आम पर आ चुके हैं। उनकी नज़में हसास ज़हन की पैदावार हैं, बल्कि कहना चाहिए निहायत हसास ज़हन की पैदावार है, जो ज़िंदगी के तमाम मज़ाहिर से जुड़कर नमो पाती हैं। इनकी नज़मों में, इनकी शायरी में वो खलाकियत है जो हमें अपने साथ लेकर चलती है, सोचने पर मजबूर करती है और साथ ही साथ हमें जदीद मंजरनामे से मुतारिफ कराती है। तशरीफ़ लाती हैं हमारी बहुत मोहतरम शायरा डॉक्टर तनवीर अंजुम। तालियां भी कम हो गई हैं आपकी अभी। तालियां इसलिए कम हुई हैं कि अब जाल बाई नहीं बजा रहे। शुक्रिया, बहुत अच्छा तारुफ लेकर आया, शुक्रिया। तो मैं अभी नसीम सैयद ने आज लिखी हुई नज़्म पेश की, मगर मैं अपनी बहुत पुरानी नज़्म निकाल पेश कर रही हूँ यहाँ पे। एक नज़्म है, उसका नाम है हर समय मसरूफ। हर समय मसरूफ हाथ चांद और सूरज सजाते हैं, इस ज़मीन को झाड़ कर खुशबू उगाते हैं। गर्म तपती जिंदगी में चांदनी की बर्फ फैलाते हुए, सर्द ऊंचे बंद दरवाजों के पीछे दूसरों के वास्ते अधबुझी चिंगारियों से आग बहकाते हुए, आसमानों से जमीन तक फैलती सारी गलाजत को समेटे, मौसमों की सख्तियों से खुरदरे, हर समय मसरूफ हाथ, हर समय मसरूफ पैर, ईस्तादा बंद दरवाजों के पीछे कैद में, वुसअतों से बेखबर, एक ही छोटे से खिते पर हजारों सैकड़ों चक्कर लगाते, दर्द से बेताब और बेखाब पैर, सख्त कांटों पर चले और फूल बिखरा दें, अजर से हैं बहना, हर समय मसरूफ पैर, हर समय मसरूफ आंखें, घोर तारीकी में एक सच्चाई को पहचानती, भूख से, बीमारियों से, गोलियों से जख्म खाए, मौत की दहलीज पर बैठे हुए बच्चों को जाता देखती, मसरूफ आंखें बंद दरवाजों के बाहर रोशनी के सिलसिलों से ख्वाब चुनती, आंसुओं से तरबतर जिल्लतों की मार खाए, झुर्रियों से पुरहसी चेहरे पे है आरास्ता, हर समय मसरूफ आंखें, हर समय मसरूफ दिल, प्यार और नफरत की पंचक्की चलाता, एक लम्हे साए में है, दूसरे लम्हे है तपती धूप में, गम सितारों की तरह सजते हैं जिसके रूप पर, हाथ के लर्जा कटोरे में भरा पानी गिरा होठों तलक आने से पहले ही, तड़पता प्यास से है हर समय मसरूफ दिल,
हाथ पैरों और आँखों से जो ज़्यादा जख्म खाए हैं और छुपाए खंजरों की आरज़ू, प्यार के और नफरतों के दरमियान दहलीज पर आज देखो कौन सा है फैसला करता ये बहुत पुरानी नज़्म है। मेरे खून से लिखो अपना नाम, मेरे खून से लिखो अपना नाम मेरे साथी, एक दुखों भरी रात और नफरतों के दरमियान होने वाले मिलाप से जन्म लेने वाले, मेरे खून से लिखो अपना नाम पहली किताब पर, मेरी कोख में मेरे दिल और बदन के जख्मों को सहने वाले मेरे साथी, मेरे खून से लिखो अपना नाम। मेरे खून से जो नादिम है अपने दुखों पर और इस हकीकत पर कि नहीं लिखी जा सकती इससे कोई खूबसूरत कहानी, कोई अजीम इंसान, मेरी नाकामी और बोझ के गैर महसूस हमराही, मेरे खून से लिखो अपना नाम। अपने जीवन की दीवारों से हटा दो मेरी आंखें, आंसू भरी आंखें, शर्म भरी आंखें, खेल लो और मत देखो मेरे दिल का टूटा हुआ सितारा, ले जाओ मेरे तूफान से अपनी कश्ती कहीं दूर, और किसी अच्छे पल की मुस्कुराहट और थोड़ी मोहब्बत, और मत सुनो ये सारी तल्ख बातें, ये नफरतें, और मत देखो मेरी ज़िंदगी के टूटे हुए आईने में अपनी छवि, ले जाओ मेरे गर्दाब से अपने ख्वाबों को बचा के, मेरे बिखरे हुए ख्वाबों का तरका समेटने वाले मेरे साथी, मेरे खून से लिखो अपना नाम किसी ऊंचे दरख्त पर, तारीख के नुमाया और रात में, या किसी हंसती हुई लड़की के हाथ सदर मुशायरा से पहले सदर आर्ट्स काउंसिल आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं एक तो वैसे तो हम अहमद शाह साहब को मधु करते हैं, लेकिन अहमद शाह साहब की भी अपनी मर्जी। मैं ये नहीं चाहता था कि किश्वर के बाद बात करूं। हमने किश्वर नाहिद का नाम सुन के और इनके बारे में सुना पहले, तो हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम ये भी क्लेम करते हैं कि हम इज़्ज़त और एहतराम तो बेइंतहा है, लेकिन हम ज़ाती दोस्त भी हैं। तो ये जो पहली वुमेन कॉन्फ्रेंस थी, उसके हवाले से हमने कुछ 4-6 महीने पहले सोचा कि ये एक ऐसा मौजू है कि इसके ऊपर हमें कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, और फिर बहुत सी ख़वातीन को से सलाह मशवरा किया, और हर तरह के बैकग्राउंड की ख़वातीन, चाहे वो बिल्कुल मिलों में काम करने वाली और फिशरमैन में जो काम करती हैं और हारियों में काम करती हैं, उनके साथ साथ समाज के शहरों में दूसरे स्कूलों में काम करने वाली। तो कल जिस तरह से हमारी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई है, तो मैं ये समझता हूँ कि आर्ट्स काउंसिल के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है कि ये ख़वातीन के इतने अहम तरीके मुकम्मल तौर पर ये कॉन्फ्रेंस को ख़वातीन ने डिज़ाइन किया है। तो ज़्यादा झगड़ा होता तो मैं बीच में डर के कोई समझौते का रास्ता सिर्फ निकालता था, बाकी पूरा प्रोग्राम सबने मिलकर बनाया। तो इससे बेहतर कोई मुमकिन नहीं था कि ये जो एक आज अभी ये मैं जो हासिल हुआ, तो एक तरह से इस कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी कलमात भी हैं। तो उस हवाले से मैंने कहा कि इससे बेहतर, किश्वर नाइट से बेहतर और कोई नहीं हो सकता था कि इस पूरी कॉन्फ्रेंस की सदारत जिनके पास हो। तो मैं अपने आर्ट्स काउंसिल की जानिब से और तमाम लोगों की तरफ से मैं मोहतरमा किश्वर नाइट का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ
कि वो तशरीफ़ लाई, उनकी सेहत भी ठीक नहीं थी और इस औरत कॉन्फ्रेंस में ये एक इब्तिदाइया था, ये एक आगाज़ था। अगले साल में हमारी किस्मत अच्छी है, फिर फ्राइडे सैटरडे 6-7 मार्च को ही पड़ रहा है, हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसका फॉर्मेट चेंज करेंगे। जो एक्सपर्ट ख़वातीन होंगी उनकी राउंड टेबल एक वर्कशॉप्स कराएंगे जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वो उसके लिए सिफारिशात बनाएं। और ये जो बड़े बड़े हम जलसे करते हैं ये खूबसूरत तो बहुत लगते हैं, लेकिन इसमें कुछ काम की बातें हो पाती हैं और नहीं भी हो पाती। तो जैसे दुनिया भर में होती हैं कि पैनल बनाएंगे और जो बाहर से और पाकिस्तान से जो भी ख़वातीन मुख्तलिफ शोबों में होंगी उनको ग्रुप्स में तकसीम करके वो आपस में एक डेलिब्रेशन करेंगे और फिर जो हमारा आखिरी मरकज़ी जलसा होगा इसका, उसके अंदर वो सारी सिफारिशात पेश होंगी और उसी की हम वो बना के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को भेजेंगे। और हमारा इतना इन्फ्लुएंस बन गया है तो असल में हमने ये कॉन्फ्रेंस इसलिए भी की कि बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा, ये औरत मार्च और फिर वो कुछ मतलब घटिया किस्म के लोगों ने जिस किस्म की बकवास शुरू की, तो इसके अंदर ये दोनों तरफ की साजिश। एक बात को आप समझें, अगर कोई आदमी किसी औरत को गाली देता है तो वो बाय डिज़ाइन भी हो सकता है, वो चाहता है कि 4 औरतें उसको रिएक्ट करें और ये जो इतना संजीदा तरीन इस मुल्क का मसला है उस लड़ाई झगड़े में बह जाए और इसको उस एकेडमिकली और उस तरीके से ये डिस्कस ना हो सके। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 8 मार्च के अलावा इसके ऊपर बैठा जाए। और बिल्कुल सही बात है, कुछ सेशन हमारे बहुत अच्छे हुए और ये बात ठीक है कि 72 साल में ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे खड़े हैं। किश्वर नाइब, मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेके किश्वर नाइब तक, बीच में भी बहुत औरतें हैं। आज की औरत 72 साल की औरत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल में है, लेकिन अभी भी इसको एक लंबा सफ़र करना है। इस सफ़र में यकीनी तौर पे जितने भी सिविलाइज मर्द हैं या सिविलाइज नहीं हैं तो बहुत कमीने, लेकिन अपने आप को सिविलाइज कहना चाहते हैं माशरे में, उनकी भी मजबूरी है कि वो ख़वातीन का साथ दें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अहमद शाह साहब। सबसे अहम बात यह है कि अहमद शाह साहब ने 2 दिन औरत कॉन्फ्रेंस करके दरअसल माशरे को ये एहसास दिलाया है कि ख़वातीन के मसाइल इतने गंभीर हैं कि उनके लिए चंद घंटों का मार्च या कुछ घंटों का प्रोग्राम काफ़ी नहीं है। औरत जब तक अपनी बात वजाहत के साथ कहेगी नहीं, ये माशरा उसकी बात समझेगा नहीं, क्योंकि औरत की बात इस माशरे की नई बात है और नई बात को समझने में ज़रा देर लगती है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अहमद शाह साहब के कि उन्होंने ये वक्त इस माशरे को दिया है कि वो हम ख़वातीन के मसाइल को समझ सकें। ख़वातीन और हज़रात, ये जो मुशायरा यहाँ मुनक़्क़िद किया गया, आपने ख़वातीन की मज़ाहमती शायरी सुनी, तानीसी शायरी सुनी, उसमें जिनको सरखेल कहा जाए वो आप सब जानते हैं कि फहमीदा रियाज और किश्वर नाइब साहिबा, ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने हमारी राह के कांटे चुने, सारे पत्थर खाए और अपने बाद आने वालों का रास्ता हमवार किया। किश्वर नाइब किसी लंबे चौड़े तारुफ की मोहताज नहीं है। इनका नाम ही एक फेमिनिस्ट के तौर पे, एक एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे सामने है, जिन्होंने निहायत शऊर के साथ, निहायत जिम्मेदारी के साथ हमेशा औरत के हक़ के लिए आवाज़ उठाई और अपने कलाम से, अपनी नस्र से ये साबित किया कि बाशऊर औरत अपने मसाइल को किस तरह मुआशरे तक पहुँचाती है। किश्वर नाइब साहिबा की शायरी में सियासी शऊर भी मिलता है, समाजी शऊर भी मिलता है। आपकी शायरी मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जुमा हो चुकी है और हमारी खुशनसीबी है कि किश्वर नाइब साहिबा खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाईं और उनकी ज़ेर सदारत ये मुशायरा हुआ। हम उनके शुक्रगुजार भी हैं और बसद एहतराम उनसे मुल्तमिस हैं कि वो कलिमात भी अदा करें और फिर कलाम अता फरमाएँ। मोहतरमा किश्वर नाइब। आज का मुशायरा इस बात की निशानदेही करता है जो अभी तक हमारे यहाँ जोर दे के नहीं गई कि लुगत जो बढ़ते मुरतब की थी, उस लुगत
میں تبدیلی شاعری میں عورت کس طریقے سے لائی ہے، اور یہ لائی جا رہی ہے کہ یہ سیلیٹ نے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے زمانے کی لکھی ہوئی تخلیقات پہ خود اپنی لغت مرتب نہیں کریں گے، پرانی لغت ہمارے کام نہیں آئے گی۔ ہم پرانا کہہ کے غالب کو رد تو نہیں کر سکتے، میر کو رد نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب سوچنے والا انسان عورت کی طرح سوچے اور عورت اپنا اظہار کرے تو وہ اس سے مختلف ہوتا ہے جو مرد کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ابھی تک مذہب شاعر بھی اتنی عاشقانہ شاعری کرتے ہیں کہ کبھی کبھی شرم بھی آتی ہے ان میں وہ شعر سنتے ہوئے، لیکن ان کے یہاں بھی آپ کو لہجے میں تبدیلی نظر آتی ہے۔ مثلا جب یہ بات میں نے امجد سے کہی تو اس نے اپنی بیٹی پہ اور اپنے بیٹے پہ نظمیں لکھی جو آج کے مشاعروں میں پڑھتا ہے۔ مثلا جب یہ بات میں نے کہی نہیں لیکن سوچی اور فاطمہ سے کہی تو فاطمہ نے بیٹی کے اوپر جو نظم لکھی ہے تو ہمارے ادب کی کلاسیکی نوعیت کی حامل ہے۔ تو جب ہم تمیر انجم تک آتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے، یا ہم اس وقت ہمارے درمیان نسیم سید موجود ہیں جو کینیڈا سے آئی ہیں، جنہوں نے آدھی گواہی کے اوپر زبردست نظم 8 سے 10 سال پہلے لکھی تھی، اور آپ یہ بھی بتا دوں کہ آدھی گواہی کے اوپر 12 فروری 1983 میں ہم عورتوں نے لاہور میں جلوس نکالا تھا۔ سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن دے دی تھی کہ عورت کی گواہی آدھی نہیں ہے، آپ اس قانون کو بدلیں۔ پھر جو ہمارا حشر ہوا تھا وہ آپ نے دیکھا تھا کہ آدھی عورتیں جیل چلی گئی تھی اور آدھی ہسپتال چلی گئی تھی، اور اس کے بعد ہی وہ اس لیے ہوئی تھی کہ اگلے دن اخبار میں اتنی سی خبر تھی جس میں لکھا تھا کہ عورتوں کے جلوس پہ تشدد، اور اتنی بڑی خبر تھی جس میں لکھا تھا کہ جو عورتیں اس جلوس میں شریک تھیں ان سب کے نکاح فسخ ہو گئے اور وہ سب گناہگار ہیں۔ وہاں سے یہ گناہگار عورتیں نکلی تھیں۔ مجھے ایک بات اور کہنی ہے، وہ یہ کہ احمد شاہ نے بہت مختلف طریقے پہ کانفرنس کا سوچا تھا اور بہت مختلف طریقے سے کانفرنس ہوئی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ موضوعات جن پہ ٹیلی ویژن نہیں ہوتا، وہ موضوعات جو عورت سے متعلق ہیں جن پہ اخبار نہیں لکھتے، جن کے اوپر مرد نہیں لکھتے، ان کو آج مرد ڈاکٹروں نے عورت ڈاکٹروں نے سامنے سب کے کھل کے بیان کیا۔ اور یہ بتایا، مجھے اس پہ یاد آیا ایک فکرہ اور کہ آج سے 20 برس پہلے جب پاکستان میں پیڈز شروع ہوئے، اس کا اشتہار شروع ہوا، سارے مولویوں نے اتنا ہنگامہ کیا، ضیاءالحق کا زمانہ تھا کہ خدا گواہ ہے کہ وہ اشتہار آخر کو بند کرنا پڑے۔ جب WHO نے شور مچایا اور کہا کہ آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے لڑکیوں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے کہ 8 سال کی ایک لڑکی نے اس لیے خودکشی کی کہ اس کو بلیڈنگ ہو رہی تھی اور اس کو سب کہہ رہے تھے بے غیرت بے غیرت بے غیرت بے غیرت۔ ہم بچوں کو تعلیم نہیں دیتے، ہم بچوں کو تانے دیتے ہیں۔ آج کی ساری نشستوں میں یہ باتیں آیا ہوئی ہیں کہ جن چیزوں پہ ہم پردے ڈالتے ہیں وہ بہت بڑھ چکی ہے۔ اب نہ صرف وہ پردے اٹھانے کی بات ہے بلکہ یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم اسکول سے لے کر، گھر سے لے کر، دفتر سے لے کر
जगह पे बराबर की सोच रखे, कोई बड़ा छोटा नहीं है, हम सब बराबर के हैं। हमारी सोच छोटी बड़ी है, हमारा जिस्म छोटा बड़ा है, लेकिन जिंदगी का शऊर जो है वो सबके अंदर वाकई होना चाहिए। मुझे इसलिए आखिरी बात याद आई कि कोई 55 साल पहले की बात है, 50-55 साल, मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया गया। तो पहली दफ़ा बनाया गया था, तो मेरे दफ्तर में और मेरी प्रमोशन भी थी, तो मेरे उस दफ्तर की तरफ से सब लोगों की तरफ से साइन किया हुआ एक खत आया कि हम इतने बेगैरत नहीं हैं कि एक औरत के मातहत काम करें, इसलिए ये ऑर्डर वापस लिए जाएं, वरना हम उस खातून के साथ ऐसी तैसी करते हैं। सेक्रेटरी जी ने मुझे बुलाया, मुझे कहा कि एक जमात इस्लामी के डायरेक्टर थे, वो असिस्टेंट एडिटर थे, जिनके ऊपर मैं एडिटर बन के जा रही थी। उन्होंने सब लोगों से साइन लिए थे और ये काम करवाया था। मैं जब दफ्तर पहुंची तो पहले सीधी उनके कमरे में गई और जाके मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, और मैं ये हूँ और आप खड़ा हैं, और मुझे पहले एक चाय का कप पिलाइए आप, और दफ्तर वालों से मेरा तारुफ कराइए, क्योंकि आप यहाँ दफ्तर में सीनियर हैं। उठकर मैंने लगा दिया, चाय मैंने पी ली, और उसके बाद उनको आगे करके उनके पीछे मैं चली, सारे दफ्तर से तारुफ हासिल किया। उसके बाद 3 साल तक उस दफ्तर में मैं बैठी रही। मुराद ये है कि आपको, क्योंकि जो आज जामे हफ्सा की औरतों ने भी मीटिंग की है, आज मौलवियों ने भी मीटिंग की है, और डंडा बरदार फोर्स भी तैयार हो चुकी है हर जगह, लेकिन जो चीज़ अहम है वो ये है कि हमें स्ट्रेटजी सोचनी होती है, जज्बाती नहीं होना होता, स्ट्रेटजी सोचनी होती है। अगर जज्बाती होना हो तो ये हुकूमत काफ़ी है जज्बाती होने के लिए, हमें स्ट्रेटजी बनानी होती है कि काम को कैसे आगे बढ़ाना है। इसीलिए मुझे आज इस मुशायरे में शामिल होकर इस बात की दोबारा यकीन हो गया कि औरतें शायरी में न सिर्फ नफ्स मज़मून को बदल रही हैं, बल्कि हमारी लुग़त को बदल रही हैं, हमारे इस्तारों को बदल रही हैं, उस एहसास को बदल रही हैं जो औरत के बारे में डिप्टी नज़ीर अहमद से लेकर अब्दुल हलीम शरण या मौलाना मौदूदी तक महदूद था। नज़्म से शुरू करती हूँ ज़्यादा। किससे इजाज़त ले रही हैं आप सब? आप तो खुद सदर हैं। मैं वो सदर नहीं, मुझे मोहम्मद सदर। इस दल का माने खेल सा है, तुम स्वामी राम बने मेरे, वाह वाह वाह, तुम स्वामी राम बने मेरे, तुम मजनू कैस बने मेरे, कभी खेल लिया, कभी छोड़ दिया, कभी पुचकारा, कभी धुतकारा, कभी पहना मसला फेंक दिया, कभी पिछवाड़े में दाब दिया, कभी हाथ में मेहंदी दिखला कर मेरे चेहरे पे हल्दी मल्दी, कभी बेगम नाम पहनवा कर मेरी जात कटोरी गुम कर दी। तुम स्वामी मजनू याद करो, जब सहरा सहरा दौड़ाया मेरी एड़ी से चश्मे फूटे, जब ऐब लगा कर धुतकारा मेरी कोख पैगंबर पर नकी, जब वैश्या कह के पलटे थे मेरा बिस्तर उम्र तुम्हारी थी। इन सारे मिसरों में हमारा सारे मजहब आ जाते हैं, सारे सारे आ जाते हैं। अगला बंद है, तुम स्वामी मजनू पल भर के दुनिया के तमाशे में तुमने मुझे जाए नमाज की इज्जत दी, दुनिया के तराजू में तुमने मुझे हीरे मोती कीमत दी। इस खेल सराय से बाहर तुम रिश्तों की टकसालों में
मुझे खोटा कह के अलग करो, वाह तुम शहवत की दीवारों में मुझे इज्जत कह के दफन करो, मुझे चौकर थप्पड़ बिता दो, मुझे मालिक दासी रत्ना दो। ये केल सराय बहुत चला, ये सड्डा चौखट बहुत हुआ, वो जल मरना चूल्हे फटना, ये आग तमाशा बहुत चला, ये गैस कबाब बेरंग हुई। इस खेल सराय से निकलो, तुम मेरे जैसे इंसान हो, मेरे दोस्त बनो, मेरे दोस्त बनो। अब एक नज्म जो नज्म के दुनिया में बनी इतनी जगह मशहूर हो चुकी है और तर्जुमा होने के बाद उसके ऊपर वर्कशॉप्स हो चुकी हैं, वो मैं आपको सुनाऊंगा। उसके बाद आप सबसे इजाज़त चाहूँ और मिले तो बात है। इसका मान है घास भी तो मुझ जैसी है, घास भी तो मुझ जैसी है, पाँव तले पिचकर ही जिंदगी की मुराद पाती है, मगर ये भीग कर किस बात की गवाही बनती है, शर्मसारी की आँच की कि जज्बे की हिद्दत। घास भी तो मुझ जैसी है, जरा सर उठाने के काबिल हो तो काटने वाली मशीन इसे मखमल बनाने का सौदा लिए हमवार करती रहती है। औरत को भी हमवार करने के लिए तुम कैसे कैसे जतन करते हो, औरत को भी हमवार करने के लिए तुम कैसे कैसे जतन करते हो। न ज़मीन की नमो की ख्वाहिश पड़ती है न औरत की। मेरी मानो तो वही पगडंडी बनाने का ख्याल दुरुस्त था जो हौसलों की शिकस्तों की आँच न सह सके। वो बेबंदे ज़मीन होकर यूं ही जोरावरों के लिए रास्ता बनाते हैं, मगर वो बड़े कहाँ हैं, घास नहीं, घास तो मुझ जैसी है। एक ऐसी नज़्म जो आप सब लिखना चाह रहे हैं, सब सोच रहे हैं, सबके ज़हन में है, लेकिन मैंने एक हफ्ते से टेलीविज़न जब दिल्ली देखती हूँ तो मुझे डिप्रेशन हो जाता है। और डिप्रेशन इतने दिन से चल रहा था तो मैंने ये मुफस्सल सी नज़्म लिखी है। ऐ मेरी गालिब तेरी दिल्ली जल गई, ऐ मेरे गालिब तेरी दिल्ली जल गई, तू दोज़ख में मंडों के साथ बातें करता रहा, तू दोज़ख में मंडों के साथ बातें करता रहा। गांधी जी आप कोई मुसलमान भी मारा जाता तो मरण व्रत रख लिया करते थे। आज बस्ती बस्ती धुआं है, पुलिस मालूम नौजवानों को बचा नहीं रही, खुद उनको पकड़ पकड़ के मार रही है। ऐ जमुना कितनी लाशें तूने देखी हैं, अब जिंदा चलती लाशें भी देख। देख मस्जिद की मीनारों पर शिव जी को बिठा दिया गया है। अलीगढ़ की मस्जिदों में नमाज पढ़ते लोगों को शहीद किया गया है। मैं अब तक कश्मीर का उड़ती रही हूँ, अब तो 4 मीनार में भी धुआं धुआं है। अलीगढ़ की मस्जिदों में अजान बंद कर दी गई है। ऐ मेरी अमृता बंटवारे पे कितना रोई थी, ऐ मेरी अमृता तू मेरे बंटवारे पे कितना रोई थी। अब मेरे साथ मातम कर, जामे मस्जिद की सीढ़ियाँ हैं और लाल किले की दीवारें हैं। गालिब तुमने अपने ज़माने का गदर देखा था, मेरे ज़माने के गदर में गेरुआ रंग छाया हुआ है। कराही है ऊंचा ऊंचा पूछ रही है, और मेरे गालिब तुम्हारी दोज़ख की आग अब दिल्ली में है। दुनिया सोची हुई है, वो तो एक कोरोना वायरस से डर गई है। हिंदुओं ने राम जी के नाम पर पानी में जहर घोल दिया है। दिल्ली की गलियों में अमीर खुसरो बैन कर रहा है।
फिर वो अहमद शाह और की तरह आप सब और अल्लाह करे हम इसी मोहब्बत के साथ अक्सर मिलते रहिए, मुकालमा करते रहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मुकालमा ख़त्म हो गया है। हम तकरीरें करते हैं, हम खुतबे देते हैं, हम मुकालमा नहीं करते। अल्लाह करे जो मुकालमे का आगाज़ कल से हुआ है वो हमारी ज़िंदगी में ज़िंदगी तक कम से कम चले और अहमद शाह को बहुत ज़िंदगी दे। जिंदाबाद। आप तनवीर इधर आए यार, सीधा सीधा समझती है, सीधा जरा उधर बैठ जाओ, इकबाल भाई बैठे। हाथ थोड़ा सा नीचे कीजिएगा प्लीज, थैंक यू। हाँ यादगार है। हाँ भाई ओके कर दो यूसुफ।